Good morning, students. Class 7th, subject English. With your English teacher, here we are ready with the next topic, subject verb agreement. Subject verb agreement. After listening to this video, you will be able to state the rules of subject verb agreement. You will be able to construct your own sentences using correct subject verb agreement. It will be helpful in your writing section also. Plus in grammar section in finding the errors also. As you get editing errors paragraph in the exam, this is in your syllabus, so it will be helpful for that purpose also. So without any delay, let us begin. Subject verb agreement. What does it mean? When a verb is agree with its subject in number and person is called subject verb agreement. So in any case, when the verb, helping verb, according to the subject, when we are going to write, it means this is agreement of the verb with the subject. कि जब हम subject को देख करके verb, helping verb का या main verb का use करते हैं, जो S और ES लगाते हैं हम present indefinite tense में, तो जब helping verb का verbs का subject के accordingly use होता है बेटा, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? subject verb agreement. You can see these two examples. He, she, it के साथ हमने goes का use किया है. I, we, you all, they के साथ हमने go का use किया है because you have done in tenses, present indefinite tense that you are supposed to use S or ES with he, she, it, any name and singular, and I, we, you, they plural के साथ हम S और ES का main verb के साथ use नहीं करते. So this is what we call subject verb agreement. Next, this table will show you that with I, he, she, it, we, you all, they के साथ हम किस तरह की helping verbs का use कर सकते हैं. Subject, person और number, person and number, then verb in agreement. I के साथ am, was, have, do, first form of the verb without S. I के साथ हम S और ES का use नहीं करते. He, she, it के साथ हम करते हैं S और ES का use, और is, was, has, does, इस तरह की हम helping verbs का use करते हैं. We, you all, they के साथ are, were, have, do, then first form of the verb का use करते हैं, लेकिन इसमें भी हम S और ES का use नहीं करते. Rule number 1 is can, could, shall, should. These are all modal verbs. तो किसी भी subject के साथ हम ये modal verbs का use कर सकते हैं. In short, I am telling you. कोई भी सब्जेक्ट है उनके साथ सब तरह के सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो उनके साथ हम ये वाले मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं. एंड द सेम थिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर लेते हैं. ठीक, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम ये नहीं देखते कि इसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी उसके साथ नहीं लगेगी. राइट. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड. अब दो से ज़्यादा नाउन आ जाए बेटा तो वो तो हमें पता ही है ना कि हम एंड का यूज़ करते हैं बीच में. ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल हो जाती है. राइट. लेकिन एक चीज़ और याद रखने वाली है इसमें, बट टू सिंगुलर नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन थिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. अब इसमें जो है द ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड. अब जो ऑनेस्ट है वो डेडिकेटेड भी है, पर्सन तो एक है ना, तो एक ही पर्सन या एक ही थिंग को जब रिप्रेजेंट करती है ना दो सिंगुलर नाउन्स, है ना, तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का. ठीक. नेक्स्ट है दीज वर्ड्स. आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे. काइंडली मेमोराइज दीज वर्ड्स. और नॉट, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इनके साथ बेटा इन ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं. Like he, I. You can see in this sentence either he or I am wrong. ठीक, तो I के साथ am लगता है. इसमें भी दो सब्जेक्ट्स हैं. हमने he को लिया तो he के अकॉर्डिंगली हमने helping verb लगा दिया. तो हमने जो लेटर सब्जेक्ट है, जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम उसके अकॉर्डिंगली ही उसके साथ वो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. दिस इज रूल नंबर 4. और इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इधर ही is wrong or I am. Either you are wrong or he is. Right. अब rule number 5 में these words you will have to memorize.
ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इनके साथ. अभी कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, डजन, 100, 1000, मिलियन, एट्सेट्रा. ओके, बट some, any, all, most may be either singular. काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए वो सिंगुलर हैं, लेकिन काउंटेबल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. जैसे बुक्स काउंटेबल है तो सम ऑफ द बुक्स आर. म्यूजिक अनकाउंटेबल काउंटेबल है तो सम ऑफ द म्यूजिक इज. ओके, बट मैनी अ, लेकिन याद रखना मैनी अ के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ठीक. रूल नंबर 6 इज टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग अ सिंगुलर आइडिया टेक अ सिंगुलर वर्ब. अब दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन जो आइडिया है वो सिंगल है. ब्रेड एंड बटर इज हिज स्टेपल डाइट. राजमा एंड राइस इज हिज फेवरेट डिश. ओके, जस्ट लाइक दैट. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ टेक प्लूरल सब्जेक्ट बट सिंगुलर वर्ब. ठीक, प्लूरल है सब्जेक्ट लेकिन जो अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे वो सिंगुलर लिखेंगे. ईच ऑफ द बॉयज हैज डन वेल. ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड. वन ऑफ, नेक्स्ट रूल नंबर 8 है वन ऑफ. वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होता है लेकिन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो सिंगुलर ही लगाते हैं. वन ऑफ माई कजन्स प्लेज. अब हमने ये बोला था कि सिंगुलर के साथ एसोरियस का यूज होता है तो हम इसको सिंगुलर में ही लेंगे. वन ऑफ माई कजन्स प्लेज चेस वेल. ठीक. रूल नंबर 9, इसमें जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ग्रुप, टीम, हर्ड, कमेटी, ऑडियंस might be singular or plural. It depends on the meaning. डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या निकलता है सेंटेंस का. जैसे कमेटी हैज़ पास्ड द बिल. ठीक है, उसके बाद कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू. काफ़ी सारी कमेटीज डिवाइड कर दी गई. नो डाउट हमने एस नहीं लगाया लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, एक कमेटी ने बिल पास किया तो कमेटी डिवाइड की गई. तो काफ़ी सारी कमेटीज़ है ना जो अपने माइंड में हमारे आ रहा है. ठीक है, लिखने में कमेटी है. अ बंच ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन्स है बेटा. बंच ऑफ, बुके ऑफ, सेट ऑफ, पैक ऑफ टेक प्लूरल नाउन्स बट सिंगुलर वर्ब. प्लूरल जो है इसमें नाउन्स है लेकिन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी. नेक्स्ट इज रूल नंबर 10. सर्टेन नाउन्स लाइक न्यूज, फिजिक्स, इनके पीछे एस एस आपको नजर आ रहा है ना, एट्सेट्रा, दैट अपीयर इन प्लूरल फॉर्म. फर्नीचर, ये सारे दिखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि फर्नीचर में बहुत कुछ दिखता है ना हमें, लेकिन कहते हैं कि दे आर सिंगुलर इन मीनिंग और हमेशा इनकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे न्यूज़ आर नहीं होता, न्यूज़ इज, फिजिक्स इज. ओके. रूल नंबर 11 में अ फ्यू वर्ड्स लाइक स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, इनके पीछे भी एस एस का यूज़ हो रहा है ना, ये प्लूरल होते हैं. कब तक? जब तक कहते हैं कि अगर इनके साथ अ पेयर ऑफ लग जाता है ना फिर ये सिंगुलर होता है. ठीक है. हर शूज आर, अ पेयर ऑफ शूज इज, एक जोड़ा है, शूज हैं. ठीक. रूल नंबर 12. वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस, weight or amount take a singular verb. For example, 1000 rupees is a lot of money. 20 miles is a comfortable distance to drive. 5 quintals of rice is sufficient to feed many hundred people.